Hello children, welcome to your English video class. Children, in my previous video I had started past tense in grammar and I had given you some verbs and their past tense. Children, in grammar we have already completed many sections like noun, verb, adverb, adjectives, then simple present tense, present continuous tense. All these we have already completed. And past tense I had started. Children, as I have always told you that for any kind of tense, verbs are very important because through verbs only we come to know whether the sentence is of present tense, past tense or future tense. The verbs change as per the nouns, as per the pronouns. The verbs change according to nouns and pronouns used in the sentence, the doer of the action. Children, we have seen that in present tense how we change verb by adding s or es or ies in respect to the nouns and pronouns. Then in present continuous tense we used is, am, are plus ing verbs. In the same way, in past tense we make changes in verbs, and that change only makes a present form of verb into past form. जो हम वर्ब में चेंज करते हैं उसी चेंज से प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में चेंज होता है. तो हमें जो मेन वर्ब होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का, उसी में चेंज करना पड़ता है टू मेक इट अ past tense, a verb of past tense. In my previous video, I had given you some words and their past tense, verbs and their past tense. In today's video also, I'm going to give you first some verbs and their past tense, and then we will do sentences of simple present tense and their past form. Children, I have decided that I will give you the words, I will find and give you the words from your textbook, the verbs and their past form, because as I have told you that in your chapter there are many verbs that are in past form, but since you have not read about past tense, you were not aware that the verbs are in their past form. जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं आपकी मेन कोर्स बुक में, उसमें बहुत सारे ऐसे verbs हैं जो कि past tense में used हैं, पर क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था past tense, इसलिए आपको पता नहीं था कि वो एक्चुअली में past tense वाले verbs हैं. तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से मैं कुछ verbs निकालूंगी और उनके past form बताऊंगी. Present tense and then past tense. Let me start from your chapter 1. जो first chapter है उसी में से मैं कुछ verb लूंगी और उसके मैं past tense बताऊंगी. ठीक है, चलिए first verb जो आपके chapter है उसी में से लेते हैं. L-I-V-E is live. live हमारा verb है और इसका past tense क्या होगा? D लगाएंगे हम सिर्फ इसमें. L-I-V-E-D, lived. Live, lived. Live, lived. Then the verb is see. S-E-E-C. तो सी का पास्ट टेंस क्या होगा? सीड. नो, तो सीड हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. सी का पास्ट टेंस होगा सॉ. S-A-W. I have told you that changing verb of present tense into past tense needs a lot of practice and you need to learn. आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे verbs लर्न करने पड़ेंगे और उनका past tense लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है.
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वर्ब का पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। मैंने आपको कई ऐसे वर्ब्स दिए थे लास्ट अपने वीडियो में जिसमें पूरा वर्ब चेंज हो गया था। जैसे टीच का टॉट हो गया था, कैच का कॉट हो गया था, ब्रिंग का ब्रॉट, बाय का बॉट। तो ये जो है प्रैक्टिस की चीजें, कभी कभी पूरी स्पेलिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है पास्ट टेंस में। हर बार ईडी या डी लगाने से ही पास्ट टेंस नहीं बनता है। तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको धीरे धीरे ये करना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, सी का हो गया सॉ। देन देयर इज अ वर्ब SIT, सिट। सिट का पास्ट टेंस क्या होता है? सिट का पास्ट टेंस होता है sat। यस, सिट का पास्ट टेंस SAT, sat। सिट, sat। Then there is a verb called hold, HOLD। ये सारे वर्ब मैं आपके चैप्टर 1 से ही ले रही हूं। होल्ड का क्या हो जाएगा? होल्डेड? नो, हेल्ड, HELD। होल्ड, हेल्ड। ठीक है। देन verb is call, CALL, call। Okay, this is also an action, to call someone, to call somebody. And the past tense of call is called। Yes, CALLED। call का हो जाएगा called, ED लग जाएगा। call, called, call, called। Then the verb is work, WORK, वर्क। वर्क का पास्ट टेंस क्या होता है? वर्कड, ED, इसमें भी ED लगेगा, WORKED, वर्कड। I'm repeatedly saying that these words are from your textbook। आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारे वर्ड्स हैं, in the present, either in the present form or in the past form। ठीक है। अब तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म में ये सारे तो एक्शन है ही है, और ये आपकी बुक में चैप्टर 1 में मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, जिनका कि मैं आपको पास्ट टेंस बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं बताऊंगी इसमें से। नेक्स्ट वर्ड है गेट। गेट इज अ वर्ब, है ना? तो गेट का पास्ट टेंस क्या होगा? गेट का पास्ट टेंस होगा गॉट। गेट का पास्ट टेंस GOT, गॉट। देन द नेक्स्ट वर्ब इज GROW, ग्रो। GROW, ग्रो। और ग्रो का पास्ट टेंस क्या होता है? ग्रोड नहीं होगा, ग्रीव, GREW, ग्रीव। गेट का गॉट, ग्रो का ग्रीव। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिव, लिव्ड, सी, सॉ, सिट, सैट, होल्ड, हेल्ड, कॉल, कॉल्ड, वर्क, वर्कड, गेट, गॉट, ग्रो, ग्रीव। ठीक है, अभी और बहुत सारे वर्ब्स हैं जितने आपके चैप्टर के हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मैं कवर करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और हैं हमारे पिक। हमारा वर्ब है पिक, लेना कोई चीज, पिक। और पिक का पास्ट टेंस क्या होगा? पिक्ड। इसमें सिर्फ ईडी लगाना है, पिक और ईडी लगाया तो हो गया पिक्ड, पिक, पिक्ड। देन नेक्स्ट इज help, help, and past tense of help is HELPED,
helped, helped. Then the word is रीड का मैं आपको बता चुकी थी, रीड का रेड होता है लेकिन स्पेलिंग वही रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है रीड में, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी थी। चलिए नेक्स्ट वर्ब है हमारा गो। गो, गो का पास्ट टेंस क्या होगा, बिल्कुल ही अलग वर्ड हो जाएगा, गो का हो जाएगा वेंट, WENT। देखिए कोई कनेक्शन नहीं है गो और वेंट की स्पेलिंग में। गो का गोड नहीं होगा, गो का गॉन नहीं होगा, गो का वेंट होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा उसका वेंट, गो वेंट। देन है एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय का पास्ट टेंस क्या होगा, एंजॉयड, इजी, इसमें बस ईडी लगाना है, ENJOYED, एंजॉय का पास्ट टेंस एंजॉयड, एंजॉय, एंजॉयड। देन नेक्स्ट है SPEND, स्पेंड, और स्पेंड का पास्ट टेंस क्या होता है, स्पेंडेड नहीं, स्पेंट, SPENT, 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 spent. Then the verb is love and past tense is loved. तो ये कुछ वर्ब्स थे आपके चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 में ये इनमें से कुछ वर्ब्स थे, कुछ रिपीटेड भी हैं जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं उन वर्ड्स को नहीं लिखा है। ये सारे वर्ब्स जो हैं ये आपके चैप्टर 1 में हैं, जिनको जो कि प्रेजेंट फॉर्म में भी है कुछ और कुछ पास्ट में है। तो जो प्रेजेंट में थे उनका मैंने आपको पास्ट टेंस बताया है और जो पास्ट में थे उनका प्रेजेंट के साथ लिख दिया है। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं वो चैप्टर 1 के हमने कंप्लीट कवर किए, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देयर पास्ट फॉर्म। चलिए अब मैं मूव ऑन करती हूँ आपके चैप्टर 2 में। इसके मैंने कुछ वर्ब्स ऑलरेडी बता दिए थे अपने पिछले वीडियो में। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्राई 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 अगेन, तो ट्राई का पास्ट टेंस ट्राइड मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा दिया था। लिव का अभी मैंने जस्ट करवाया, लिव का लिव्ड कराया था, ठीक है। देन एक और जो था वो इसमें जो नहीं करवाए हैं वो ही मैं इस चैप्टर से कराऊंगी, कुछ मैं क्योंकि ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसको मैं इरेज करके फिर से लिखती हूँ। एक वर्ब है लीड, लीड करना आगे आगे, तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा लेड, LED, लेड। देखिए पूरी स्पेलिंग ही डिफरेंट है, लीड एंड देन लेड, लीड का पास्ट टेंस लेड। देन नेक्स्ट वर्ब इज डिफीट, मैं करवा चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। डिफीट का पास्ट टेंस डिफीटेड, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। देन सेव, सेव, सेव का पास्ट टेंस क्या होगा, सेव्ड, सेव का पास्ट टेंस सेव्ड, SAVED, सेव, सेव्ड, सेव, सेव्ड। देन रन करवा चुकी हूं मैं, रन का पास्ट टेंस रैन अपने पिछले वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। देन नेक्स्ट है टायर्ड, भी मैं करा चुकी हूँ, टायर्ड करवा चुकी हूँ। देन यूज, अनदर वर्ब इज यूज, तो यूज का पास्ट टेंस होगा यूज्ड, यूज, यूज्ड, सिर्फ आपको डी लगाना है, USED। जरूरी नहीं है कि सब में ED ही लगाएं, जिनमें पहले से ही E लगा हुआ है उसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसमें सिर्फ D लगा देंगे तो वो पास्ट टेंस हो जाता है यूज का, यूज्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज
फेल, और फेल का फेल्ड मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसलिए मैं ये वर्ड भी लीव कर रही हूँ. फेल, फेल्ड आई हैव ऑलरेडी डन. देन वर्ब इज फॉल, FALL, फॉल. गिव ना, फॉल. फॉल का पास्ट टेंस क्या होगा? फॉल्ड नहीं होगा, फेल. फॉल, फेल. फॉल, फेल. देन द वर्ब इज गिव, और गिव का भी मैं करवा चुकी हूं अपने पिछले वीडियो में. गिव का पास्ट टेंस गेव. दिस ऑल्सो इज डन. देन द वर्ब इज रीच. रीच, कहीं पहुंचते हैं ना, वी रीच समवेयर, तो रीच का पास्ट टेंस होगा रीच्ड. REACHED. रीच, रीच्ड. रीच, reached. Then another word is surprise. सरप्राइज, और इसका पास्ट टेंस होगा सरप्राइज्ड. सिर्फ डी लगाना है क्योंकि लास्ट में पहले से ही ई है. जहां भी स्पेलिंग में पहले से ही ई है, स्पेलिंग में, वर्ब की स्पेलिंग में एंड में ई है अगर पहले से ही, तो जनरली सिर्फ डी लगाने की जरूरत पड़ती है. सरप्राइज, सरप्राइज्ड. सरप्राइज, सरप्राइज्ड. देन द वर्ब इज क्राई. क्राई का पास्ट टेंस जैसे ट्राई का ट्राइड था, वैसे ही क्राई का क्राइड. क्राई, क्राइड. देन द वर्ब इज फाइट. FIGHT. फाइट, और फाइट का फाइटेड नहीं होगा. जैसे टीच का टॉट, कैच का कॉट, फाइट का फॉट. फाइट का होगा फॉट. FOUGHT. फाइट का फॉट. ठीक है स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बट ऑफ कोर्स हाँ लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो भी इसमें मिस्टेक करते हैं. पास्ट टेंस में वो भी मिस्टेक करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहते. प्रैक्टिस हमेशा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो पाएगा. आप लर्न करते रहिए. इसलिए मैंने वर्ब भी आपके चैप्टर से ही लिया है, ताकि आपको अलग से कुछ ना दूं. मैं आपके चैप्टर में से ही वर्ब लिया है, उन्हीं के पास्ट टेंस आपको बता रही हूँ. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ब्स बार बार आपको दिखते रहेंगे, इसीलिए वही वाले वर्ब्स लिए हैं. लीड का लेड, सेव का सेव्ड, यूज का यूज्ड, फॉल, फेल, रीच, रीच्ड, सरप्राइज, सरप्राइज्ड, क्राई, क्राइड, फाइट, फॉट. देखिए सिर्फ 2 चैप्टर करने से ही हमको इतने सारे वर्ब्स उसमें से दिख गए, है ना. तो जैसा मैंने बोला ना कि आपके चैप्टर में बहुत सारे ऐसे, हमें बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके चैप्टर में से ही हमें मिल जाएंगे. एंड इससे ये होगा कि जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन साथ साथ में होता रहेगा, वर्ब्स का भी रिवीजन होता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है, चलिए फिर एक और वर्ब है कम, लेकिन इसका मैं पास्ट टेंस आपको करवा चुकी हूं. कम का केम. नाउ अ वर्ब इज गैदर. GATHER. गैदर, इकट्ठा करना. तो गैदर का पास्ट टेंस क्या हो? गैदर्ड. सही है. तो ये GATHERED. स्टूडेंट, बहुत सारे मैक्सिमम वर्ब्स तो ऐसे होते हैं जिसमें कि ईडी लगाने से भी उनका पास्ट टेंस आराम से हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिसमें ईडी नहीं लगाना पड़ता, पूरी स्पेलिंग चेंज हो जा रही है, पूरा वर्ड ही चेंज हो जा रहा है. तो जिसमें ईडी लगाना है वो आपको इजी लग रहा होगा. गैदर, गैदर्ड. देन मार्च. ये मंथ वाला मार्च नहीं है, ठीक है. मार्च, अप्रैल, मई वाला मार्च नहीं है, ये ऐसे ऐसे करने वाला मार्च है, एक्शन वाला मार्च है. ये मंथ में वाला मार्च नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला नहीं है.
तो इस एक्शन जो मार्च है इसका पास्ट टेंस हम बनाएंगे MARCHED। इधर भी ईडी ही लगाना है। मार्च, मार्च्ड, मार्च, मार्च्ड। नेक्स्ट है अगेन टीच है। टीच का टॉट हम कर चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। देन अनदर वर्ब है ओपन, ओपन। एंड ओपन का पास्ट टेंस क्या होगा? अगेन दिस इज इजी, इसमें भी ईडी ही लगाना है। OPEN ओपन लिख के उसमें लगाएंगे आप ईडी। ओपन, ओपन्ड, ओपन, ओपन्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक। नेक्स्ट है आपका शो, SHOW, शो, शो दिखाना। तो शो का हो जाएगा शोड, SHOWED, शोड, शो, शोड। ये मैक्सिमम आपके देखिए ईडी लगाने वाले ही आ गए। गैदर, गैदर्ड, मार्च, मार्च्ड, ओपन, ओपन्ड, शो, शोड। देन सेव का तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फ्राउन, फ्राउन, FROWN, फ्राउन। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे आईब्रोज को लाके पास, दैट इज कॉल्ड फ्राउन। तो फ्राउन का क्या हो जाएगा? फ्राउंड। फ्राउन का फ्राउंड हो जाएगा। ये सारे देखिए ईडी वाले ही लिखा है। फ्राउन का फ्राउंड। अब थोड़ा सा चेंज होगा। STOP, स्टॉप। स्टॉप का क्या होगा? स्टॉप का स्टॉप्ड ही होगा, ईडी ही होगा, लेकिन आपका एक लेटर जो है वो रिपीट हो जाएगा। STOPPED। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई लेटर आपको रिपीट करना पड़े। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज। चेंज का होगा चेंज्ड, CHANGED। चेंज, चेंज्ड, चेंज, चेंज्ड। ठीक है, चलिए रिपीट कर लें इसको। गैदर, गैदर्ड, मार्च, मार्च्ड, ओपन, ओपन्ड, शो, शोड, फ्राउन, फ्राउंड, स्टॉप, स्टॉप्ड, चेंज, चेंज्ड। चलिए अब और वर्ब्स देख लेते हैं। आपके चैप्टर से ही देखेंगे, और चैप्टर से ही हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए और वर्ब्स देख लेते हैं। पुल, पुल। पुल का पास्ट टेंस क्या होगा? पुल का पास्ट टेंस होगा पुल्ड। इसमें भी ईडी ही लगेगा। PULLED, पुल, पुल्ड, पुल, पुल्ड। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो का पास्ट टेंस क्या होगा? फॉलो का होगा फॉलोड। ये भी ईडी लगाने वाला ही है। फॉलो, फॉलोड, FOLLOW लिखना है और साथ में लिखना है ईडी। फॉलो, फॉलोड, फॉलो, फॉलोड। देन नेक्स्ट है टेक। टेक का क्या होगा? टुक, TOOK, टुक। पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। टेक में टुक,
पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई है ना। नेक्स्ट है मिक्स। मिक्स, मिक्स का क्या है? मिक्स का है मिक्स्ड, MIXED, mixed, mix, mixed. Then verb is stir, STIR, stir. अब स्टर का पास्ट टेंस स्टर्ड ही होगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज क्या हो जाएगी, डबल R, STIRRED, stir, stirred, stir, then stirred. Then verb is pour, 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 pour. pour का पास्ट टेंस poured, POURED, pour, poured, इसमें ed ही लगेगा, pour, poured. Then the verb is put. Yes, this is interesting. put का पास्ट टेंस क्या होगा? put का पास्ट टेंस होता है put. put का पास्ट टेंस put ही होता है. put का पास्ट टेंस put, put, put. ये एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बिल्कुल सेम होता है. पुट, पुट सेम होता है कट के लिए भी, CUT, कट, और कट का पास्ट टेंस भी होगा कट. मतलब प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट फॉर्म में भी कट और पास्ट फॉर्म में भी कट. ठीक है, तो ये पुट का पुट, कट का कट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. पुटेड नहीं बोलना है, कटेड नहीं बोलना है. पुट का पुट ही बोलना है पास्ट टेंस में भी, और प्रेजेंट टेंस में भी पुट बोलना है, और कट का कट ही बोलना है प्रेजेंट में भी और पास्ट में. ठीक है, नेक्स्ट हो गया, इसको एक बार बोल देती हूँ मैं आपके लिए. पुल, पुल्ड, फॉलो, फॉलोड, टेक, टुक, मिक्स, मिक्स्ड, स्टर, stirred, pour, poured, put, put, cut, cut. ठीक है, ये हमने काफी सारे हमारे वर्ब्स हो गए. देखिए आपके चैप्टर में कितने सारे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं. तो मैं सिर्फ नए वाले ले रही हूँ, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको मैं नहीं छू रही हूँ, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ. जो आपके जो मैंने नहीं करवाया है, बस उन्हीं वाले वर्ब्स को मैं देख रही हूँ. चलिए इसको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारा, देखिए फिल, FILL, फिल, और इसका पास्ट टेंस है फिल. देखिए अभी जो मैंने आपको इधर भी जितने भी करवाए वो मैक्सिमम कैसे थे, जिसमें कि ED लगाना था. मैक्सिमम वही थे जिसमें कि आपको ED लगाना था. तो फिल, filled, fill, filled. Next is find. अब find का find, ये तो पहले से ही find है, अब finded तो नहीं हो सकता इसका. तो क्या होगा find का found. Yes, find का found, FOUND, find, found. देखिए पूरी स्पेलिंग ही अलग है. find, found, find, found. नेक्स्ट है डेकोरेट. डेकोरेट सजाते हैं ना किसी चीज को, डेकोरेट. तो डेकोरेट का पास्ट टेंस होगा डेकोरेटेड. वर्ड बड़ा सा लग रहा था लेकिन कुछ नहीं, उसमें सिर्फ ED ऐड करना है. डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेट एंड डेकोरेटेड. फिर उसके बाद
बस स्टार्ट एक और मिलते हैं, START, स्टार्ट, और स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड, स्टार्टेड। हमने काफी सारे, ये सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स थे और 3 चैप्टर्स में हमको इतने सारे वर्ब्स मिल गए, है ना। तो अभी जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें से भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपका वर्ब का रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा। पर आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं और आपको वर्ब्स दूंगी, उनके पास्ट टेंस भी बताऊंगी, एंड दैट टू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।